let's start about meiosis. Meiosis is a second type of cell division which is discovered by Farmer and Murray in 1905. In 1905. And it occurs only once in life cycle during gamete formation. Once in life cycle during gamete formation. Suppose if I'm talking about there is a diploid cell. It's a diploid cell, means in which the number of chromosomes are full. So it results in the formation of diploid cell to 4 haploid cells by both type of division, that is both type of meiosis 1 and meiosis 2. So a diploid cell will give rise to 4 haploid cell in which the number of chromosomes reduced to half. So 4 haploid cells are formed. This is all about meiosis. Meiosis is also known as the reduction division. Reduction division, why it is called as reduction division? Because the number of chromosomes reduced to half. Reduction division. That means 2n n conditions are formed. 2n conditions are formed by this, from diploid to haploid. Diploid to haploid condition. So number completely, suppose if I'm talking about the human. So in diploid condition, human have 46 in number, and in haploid condition just reduced to half, that is 23. So it is due to the meiosis, and this meiosis is due to meiosis first, in which the chromosome reduced to half. Second point about discovery, then it is meiosis discovered in the unopened in plants and animals both. So in plants it was better studied in the in anthers of unopened flower, and in animals testes of grasshopper. टेस्टीज ऑफ ग्रास होपर, इसमें इनको सबसे पहले स्टडी किया हुआ था. मियोसिस कंसिस्ट ऑफ अगेन 4 steps: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज 1 and telophase 1. This is because this is of a type of meiosis first. So prophase first, metaphase first, anaphase first and telophase first. First of all, I am dealing with the prophase 1. And this prophase 1, it is the longest phase of meiosis 1, which consists of 5 substages. Longest phase, and it is also the most complex stage of meiosis. Okay, it consists of first substage, that is leptotene. What happens in leptotene? In this, the chromatin fibers condense and form chromosome. Chromatin fibers, I already told you what is it and all. So these chromatin fibers condense and form chromosomes. In diploid organism, 2 chromosomes of each type is present, so we can say that it is a homologous chromosome. Homologous chromosome मतलब उसमें same type का chromosome present रहेगा. So क्रोमोसोम अगर हम बात करें डिप्लॉयड इंडिविजुअल की, डिप्लॉयड इंडिविजुअल में क्रोमोसोम्स जो होंगे सेम टाइप के प्रेजेंट होंगे. डिप्लॉयड इंडिविजुअल में क्रोमोसोम्स हैं, सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, एंड दैट्स व्हाई सेम we also can say that chromosomes 2 chromosomes of each type, 2 chromosomes of each type. So these are called as the homologous chromosomes. These are known as the homologous chromosomes. Now I'll show you with the help of diagram. This is centromere, and suppose these are the homologous chromosomes. And these homologous chromosomes, these are wide apart and connect with the help of centromere, and in centromere you know that 2 protein discs are formed, and these protein discs is called as kinetochore, which provide the site for the attachment of spindle fibers. Kinetochore.
core, and we can say that it is the homologous chromosomes. This also called as the bouquet stage, in which the group of chromosomes are found, various groups of chromosomes are found. That's why it is also called as the bucket stage. Sorry, bouquet stage. Or we can say that leptotene or bouquet stage. Leptonema is also another name of this stage. Next is the zygotene. Zygotene, in which the uh, after leptotene, the second substage, which is called as the zygotene. Second substage is zygotene. Zygotene, or another name is synaptotene. Now, why another name synaptotene given to this stage? That because of the presence of synaptonemal complex, which is formed in between the two homologous chromosomes. Suppose what? These are homologous chromosomes. Homologous chromosome starts pair by synapses, and this pair of homologous chromosome is called as bivalent. And why they बुके स्टेज के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है जाइगोटीन, इन विच यहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम है इनके बीच में क्या होने लग जाएगी, पेयरिंग होने लग जाएगी. पेयरिंग किस वजह से होगी? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स. ये सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स इन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में बनने लगेगा. इस सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स को ही क्या बोला जाता है, की वजह से जो है पेयरिंग होता है. एंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, दिस सब स्टेज इज आल्सो कॉल्ड एज द सिनेप्टोटीन. एंड दिस कॉम्प्लेक्स is made up of DNA plus protein. DNA plus protein. Now, this condition of homologous chromosome is the bivalent. This condition is the bivalent condition. Bivalent, and this complex help in pairing and help in pairing and chiasmata formation. Now, next substage is the pectine. In pectine substage, what happens? Very important stage of the prophase. इस स्टेज में, इन पेकाइटिस स्टेज में क्या होगा? ये क्रोमोसोम है, ओके, एंड दिस इज अनदर स्ट्रक्चर ऑफ मैटरनल साइड और पैटर्नल साइड, दोनों तरफ से क्रोमोसोम्स होंगे. तो वहां उस टाइम पे क्या होगा? दिस इज द टेट्राड कंडीशन. बाइवेलेंट हमने इन दोनों के लिए बोला था, अगर हम इंडिविजुअली बोले तो ये कंडीशन क्या हो गई है? टेट्राड. Now bivalent is called as tetrad and each chromosome is called as dyad. So tetrad condition is present. Now what happens in the chromosome? These both are called as the sister chromatids. These both are called as the sister chromatid, and in the similar manner this white part of the white chromosomes is also called as the sister chromatid. But what happened कि ये जो sister chromatid होगा, ये जो sister chromatid होगा, ये दोनों एक दूसरे के सिस्टर क्रोमैटिड है, ये दोनों भी एक दूसरे के क्या होंगे? सिस्टर क्रोमैटिड होंगे. बट व्हाट हैपेंस, ये वाला क्रोमोसोम इस क्रोमोसोम के लिए क्या हो जाएगा? नॉन सिस्टर हो जाएगा. इनको हम बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड. बट द पेयर इज कॉल्ड एज द होमोलोगस क्रोमोसोम. कैसा है ये क्रोमोसोम? होमोलोगस है बिकॉज हर इंडिविजुअल, डिप्लॉयड इंडिविजुअल की बात करें तो दोनों सेम, दो क्रोमोसोम होंगे हर टाइप के लिए, हर दो दो क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे. तो ये कैसा हुआ? होमोलोगस क्रोमोसोम ही होगा. और होमोलोगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में ही हमेशा क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है. क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? नाउ आई विल शो यू द हेल्प ऑफ डायग्राम दैट ये क्रोमोसोम है एंड अनदर इज, इनमें भी पेयरिंग हो गया है. तो इन होमोलोगस क्रोमोसोम में पेयरिंग हो गया तो इट कन्वर्ट्स लाइक दिस. ये दोनों इससे अटैच्ड हैं. अब इसमें क्या होगा? इस पेकाइटिन स्टेज में ये जो पार्ट, ये जो क्रोमोसोम है, ये इस तरीके से होगा, ये इस तरीके से है.
और बाकी इस तरीके से प्रेजेंट है. So this is called as the point at which this occurs. The process is known as the crossing over. This is called as crossing over, which occurs between the chromosome of the paternal and maternal side. और जिस पॉइंट पे ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, this point is known as the chiasma. That point is known as the chiasma. So the product of crossing over is, एक तो क्या रहेगा, किसी तरह का कोई क्रॉसिंग ओवर इस आर्म में तो हुआ नहीं है, ऊपर फर्स्ट आर्म में. सपोज आई एम नंबरिंग दिस, दैट इट इज 1 2 एंड दिस 3 एंड दिस इज फोर्थ. तो ये 3 वाला क्या हुआ, सेकेंड के साथ में क्रॉस ओवर करते हुए, फर्स्ट और फोर्थ में जो है कोई भी चेंज नहीं आया है. सो द पार्ट इज लाइक, एंड दिस इज 1 2 3 एंड 4. फर्स्ट और फोर्थ में कोई भी चेंज नहीं आया. चेंज किस में आएगा, सेकंड और थर्ड में, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर सेकंड थर्ड क्रोमैटिड्स के बीच में ही हो रहा है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, as a result of this, it consists of like this. ये एक पार्ट इसमें किसका आ गया, टर्नल साइड से आ गया, एंड ये वाला पार्ट जो है ये इसमें कहां से आ गया, मैटरनल साइड से आ गया. एंड सेम विद दिस, कि यहाँ पे क्या था, वाइट, और इस वाइट पार्ट पे सेकेंड का कुछ पार्ट आके लग जाएगा, और एक जो है इसी तरीके से प्रेजेंट होगा. नाउ दिस इज द नॉन क्रॉसिंग ओवर क्रोमैटिड. दिस इज द नॉन क्रॉसिंग ओवर chromatid, and both of these are the crossing over chromatids, crossed over chromatid. And due to the presence of this crossing over, variations occurs in the species, and they are basically responsible for the evolution. Crossover chromatids. यही क्रॉसिंग ओवर की वजह से कुछ कैरेक्टर्स हमारे जो पेरेंट्स से सिमिलरिटी चल रही है, यहीं पे आगे कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हमें क्रिएट होते हैं. एंड दिस इज ऑल्सो अ नॉन क्रॉसिंग ओवर क्रोमैटिड. Okay, and the more important thing is also is the important points कि क्रॉसिंग ओवर एक तो इस स्टेज, इस पेकाइटिन सब स्टेज में होएगा प्रोफेज फर्स्ट की, जिसकी वजह से क्या फॉर्मेशन होएगा, चियास्मा का फॉर्मेशन होगा. एंड वी कैन से दैट चियास्मा इज द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर. चियास्मा इज द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर. Now the fourth substage is the diplotin. Fourth substage is the diplotin. Diplotin in which the synaptonemal complex dissolve. यहाँ पे जो पेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स था, ये सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स अब क्या होने लग जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा. चियास्मेटा बनता कहाँ पर है, पेकाइटिन स्टेज में बनता है, बट वो विजिबल कंप्लीटली होता है डिप्लोटीन स्टेज में. सो यहाँ पे बिकॉज होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट्स रिपल्शन, बट एट सम प्लेसेस दे रिमेन जॉइन एंड फॉर्म चियास्मेटा विच इज विजिबल. सो वी कैन से दैट चियास्मेटा बनता कहाँ पे है, बन तो जाता है पेकाइटिन स्टेज में ही, लेकिन विजिबल कहाँ होता है, डिप्लोटीन स्टेज में जो है चियास्मेटा विजिबल होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट डिप्लोटीन. And fifth is the dikinesis. The fifth stage is the dikinesis, जहां पे ये जो हमने क्रॉसओवर बनाए थे, क्रॉसिंग ओवर के थ्रू जो कंप्लीटली ये चियास्मेटा क्रोमोसोम के टिप पे जब आ जाएगा, उसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे जाके जो है कंप्लीटली टिप पे आना ही जो है, दैट इज द बेसिक फीचर ऑफ द डाइकाइनेसिस. इज ऑल्सो नोन एज द टर्मिनलाइजेशन. Dikinesis. Fifth is the dikinesis. And in dikinesis what happens, dikinesis is also called as the terminalization, जहां पे ये क्रॉसिंग ओवर जो हुआ था ये कंप्लीटली कहाँ आ जाएगा, टर्मिनल पॉइंट्स पे आ जाएगा, एट द एंड. That's what is known as the terminalization. So chiasmata at the present at the end and nucleolus degenerates. Dikinesis means chiasma towards the tip of chromosome.
towards the tip of the chromosomes. And this is all about prophase first. That's all for the today. In next session we deal with the stages metaphase first, anaphase first, and telophase. Now I would like to repeat once again with all the substages of meiosis. Now meiosis, the known as meiosis consists of two division, meiosis first and meiosis second. In meiosis first, this is a reduction division. Why it is called as reduction division, या हम इसको क्यों बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन? बिकॉज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, जस्ट हाफ पे आ जाएगा. अगर मैं बात करती हूँ ह्यूमन सेल की, तो वहां ह्यूमन सेल में हम लोगों की बॉडी में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं? देयर इज अ 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, और ये 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और वी कैन से 23 पेयर. ये क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट के बाद में कितने, मियोसिस फर्स्ट के बाद में 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है दो डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. प्लांट्स में इसमें अनओपन फ्लावर के एंथर्स में डिस्कवर किया गया था, और एनिमल्स में ग्रास ऊपर की टेस्टीज में डिस्कवर किया गया था. फर्स्ट स्टेज इज द सेम लाइक द माइटोसिस, पी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, बट बिकॉज मियोसिस फर्स्ट की हम स्टेज सब स्टेजेस की बात करें तो फर्स्ट डिनोशन यहाँ पे मिल जाएगा. तो प्रोफेज फर्स्ट ये सबसे कॉम्प्लेक्स स्टेज होता है विच कंसिस्ट ऑफ 5 सब स्टेजेस, दैट इज द लेप्टोटीन. फर्स्ट इज द लेप्टोटीन, जहां पे क्या होएगा, क्रोमेटिन फाइबर्स जो है, क्रोमेटिन फाइबर्स कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं. और फाइनली जब सेल डिवाइड होने लगता है तो ये क्रोमेटिन फाइबर्स कंटेंट्स होकर किस रॉड शेप्ड बॉडी स्ट्रक्चर अटेन कर लेते हैं, क्रोमोसोम्स का. और ये क्रोमोसोम्स हर डिप्लॉयड इंडिविजुअल, डिप्लॉयड जहां पे क्या होगा, टू एन कंडीशन है, तो एक क्रोमोसोम का दूसरा टाइप सेम रहेगा, तो टू क्रोमोसोम हर टाइप के कितने हो गए, दो क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे. जहां पे क्या प्रेजेंट होंगे, जीन एलील्स ये सब प्रेजेंट इक्वल होगा, सेम टाइप का, तो उसको हम बोलेंगे होमो. होमो मतलब सेम, सेम कैरेक्टर के ही दो क्रोमोसोम्स का प्रेजेंट होना, तो होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा. यहाँ पे इसी तरह से बताया कि क्रोमेटिन फाइबर्स कंटेंट्स होके रॉड शेप बॉडी अटेन कर लिया, इसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं. और क्योंकि ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे क्रोमोसोम, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज द बुके स्टेज. सेकंड सब स्टेज इज दी जाइगोटीन और सिनेप्टोटीन. जाइगोटीन सब स्टेज में क्या होता है, जो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में पेयरिंग स्टार्ट होता है, एंड दिस पेयरिंग इज known as the synapses. Pairing is known as the synapses, and this synapses occurs with the by the formation of the synaptonemal complex. और ये जो synaptonemal complex है, ये किसका बना हुआ होता है, डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ होता है, जो इन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग में पार्टिसिपेशन करेगा. एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द synaptonemal complex, this stage is known as the synaptotene. थर्ड सब स्टेज इज दी पेकाइटिन सब स्टेज. पेकाइटिन सब स्टेजेस में क्या है कि यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, पेयरिंग हो गया. ये बता दी दोनों, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेपरेट करके दिखा रखा है. तो यहाँ पे ये वाला क्रोमैटिड इस क्रोमैटिड के लिए क्या होएगा, सिस्टर, क्योंकि ये एक ही सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम की क्रोमैटिड्स हैं, तो दोनों पे यहाँ पे जो जीन अगर प्रेजेंट है तो ये भी सेम यहीं पे जीन प्रेजेंट होगा. जो एलील्स यहाँ पे है वही एलील्स यहाँ पे होंगी, तो सेम सब कुछ यहाँ पे होगा, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द सिस्टर क्रोमैटिड. लेकिन यहाँ पे भी सेम वही बात है, सिस्टर क्रोमैटिड, लेकिन ये वाला क्रोमैटिड इस क्रोमैटिड के लिए क्या हो जाएगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, और ये पूरा क्या कहलाएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम. तो यहाँ पे जो क्रॉसिंग ओवर अगर होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है पेकाइटिन सब स्टेज में, क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है कि मेटरनल और पेटर्नल साइड दोनों से, मतलब मदर की तरफ से और फादर की तरफ से, दोनों की तरफ से क्रोमोसोम्स आएंगे, तो उन क्रोमैटिड्स के बीच में क्या हो जाती है, एक एक्स शेप, इस तरीके से क्रॉसिंग हो रहा है कि ये वाले कैरेक्टर्स कहाँ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, और ये वाले कैरेक्टर्स इस तरफ आएंगे. तो ये कैरेक्टर्स का क्या हो जाए, क्रॉसिंग. ये जो एक्स शेप, ये जो जहां से क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, इसको, इस पॉइंट को बोला जाता है चियाज्मा. और जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, जो किसके बीच में होती है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में. जो मैंने 1 2 3 4 के थ्रू बता रखा है कि 1 और 4 सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द नॉन क्रॉसिंग ओवर क्रोमैटिड. सेकेंड और थर्ड के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, यहाँ के क्रोमोसोम इस क्रोमोसोम के साथ में क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं, तो ये सेकेंड और थर्ड कैसे बन जाएंगे, क्रॉस्ड ओवर क्रोमैटिड. और जो चियाज्मा बना है वो किसकी वजह से बना है, इस क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से ही एक्स स्ट्रक्चर आता है, जिसे हम चियाज्मा बोलते हैं. एंड फोर्थ सब स्टेज इज द डिप्लोटीन. और डिप्लोटीन सब स्टेज में क्या होता है, ये जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो जाइगोटीन सब स्टेज में बनता है, इसमें पेयरिंग वगैरह सब करवाती है, उसके बाद में ये डिसॉल्व हो जाएगा. डिसॉल्व होने के बाद में
डिसॉल्व हो जाएगा एंड चियास्मेटा बनता कहाँ पर है, पेकाइटिन सब स्टेज में, बट वो कंप्लीटली विजिबल होता है डिप्लोटीन सब स्टेज में। लास्ट इज द डाइकाइनेसिस और टर्मिनलाइजेशन, जिसमें कंप्लीटली जो है जब दो क्रोमोसोम्स हो गए क्रोमोसोम के बीच में, तो ये क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर भी हो गया। ये क्रॉसिंग ओवर जो होगा मूव होता रहेगा, ये जब मूव होता रहेगा तो जब ये बिल्कुल क्रॉस्ड ओवर प्रोडक्ट कहाँ पे बिल्कुल पहुंच गया, ये जो क्रॉसिंग ओवर हुआ था ये कंप्लीटली कहाँ पहुंच गया, बिल्कुल एंड्स पे पहुंच गया। ये जब एंड पे पहुंच जाएगा तब हम इसको क्या बोलेंगे कि डायकाइनेसिस या चियास्मा कंप्लीटली क्रोमोसोम के टिप पे पहुंच गया है, एंड दिस इज नोन एज द टर्मिनलाइजेशन। This is all for today. In next session, we deal with the metaphase first, anaphase, and telophase first. Thank you.